So now we will be studying the different types of data structure. Okay. So data structure, basically आप data structure को कैसे define करते हो, पहले तो हम ये देखते हैं. जो data structure होता है ये है क्या, because this is the name of your subject. Okay, so a data structure is a particular way of organizing the data in a computer so that it can be used effectively. This is the precise definition of data structure, that it is a particular way of organizing data in a computer so that it can be used effectively. इसका example क्या हो जाएगा? इसका example हो जाएगा that you want to use array for sorting a list of items having same data type, right? हम array को ऐसे डिफाइन करते हैं, हम array को तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो डेटा है वो सेम डेटा टाइप का हो, ठीक है. सो यू कैन यूज़ array फॉर sorting. List of items having same data type, ठीक है. अब डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है. अभी मैं बताती हूँ कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि इसके सब टाइप्स क्या हैं. लीनियर के अंदर वी विल बी स्टडिंग व्हाट, वी विल बी स्टडिंग अबाउट एरे, ओके, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट, ओके. एंड नॉन लीनियर में वी विल बी स्टडिंग अबाउट ग्राफ and trees. I hope I made my point clear. Now we will be starting with the linear data structure. Data structures where data elements are arranged sequentially or linearly, where the elements are attached to its previous and next adjacent in, ठीक है. तो ये होते हैं आपके linear data structures. The data structures where the data elements are arranged sequentially, ठीक है, or linearly where the elements are attached to its previous and next adjacent in, ठीक है. Secondly, only a single level is involved in linear data structure, okay. तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लेवल ही रहता है, जबकि मल्टीपल लेवल्स होते हैं इन द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है. वी कैन ट्रैवर्स ऑल द एलिमेंट्स इन अ सिंगल रन ओनली, ठीक है. आप आसानी से ट्रैवर्स कर सकते हो ऑल द एलिमेंट्स इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड दैट टू इन अ सिंगल रन. Linear data structures are easy to implement because computer memory is arranged in a linear way. So they are easy to implement because हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो भी linear way में ही arranged है, okay. What are the examples? Examples are array और stack. वही example जो मैंने ऊपर लिखवाए थे अभी. You can have queue and you can have linked list. Next we have non-linear data structure.
Non-linear data structure are, in this, the data elements are not arranged sequentially or linearly. So they are not arranged. They means data elements. They are not arranged sequentially or linearly. Okay. Multiple levels are involved here. वहाँ पे सिंगल लेवल था तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स हैं. ओके. Now non-linear data structure में you can't traverse all the elements in a single run. So यहाँ पर आप traverse नहीं कर पाते हो all the elements in a single run. And this is not at all easy to implement because हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है it's in a sequential fashion, but ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें sequential arrangement नहीं होता डेटा का, so it's not easy to implement. Okay, but इसका प्लस पॉइंट ये है that it utilizes the computer memory very efficiently. ठीक है, ये आपको समझ में आएगा आगे. विल बी स्टडिंग इन मोर डेप्थ दैट ऐसा क्यों है कि नॉन लीनियर एफिशिएंटली कंप्यूटर मेमोरी को यूज़ कर पा रहा है बट लीनियर नहीं कर पा रहा. राइट. इसके एग्जांपल्स क्या पढ़े थे हमने, ट्रीज और ग्राफ्स. ओके. एक्चुअली जो हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा था उसी में दो कैटेगरीज होती है. ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना नॉन प्रिमिटिव, इससे प्रीवियस लेक्चर में जो आपने पढ़ा था उसकी दो कैटेगरीज होती हैं. एक तो होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, और एक होता है नॉन लीनियर डीएस. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं that what are algorithms, because these are an integral part of programming. हम प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं to make our programs more efficient. So an algorithm is defined as a finite set of steps to solve a problem. So आप एल्गोरिथम को क्या कहते हैं, finite set of steps to solve a problem. अब बेसिकली यहाँ पे स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स जो हैं आपके इंस्ट्रक्शंस हैं. ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपके फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज़ करते हो. राइट. सो इंस्ट्रक्शंस आर दी फंडामेंटल ऑपरेटर्स. फॉर एग्जांपल क्या होते हैं फंडामेंटल ऑपरेटर्स आपके, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एक्सेट्रा, जब आप एल्गोरिथम लिखते हो ना उसमें. ठीक है. अब जो एल्गोरिथम होती है उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ओके. सो व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स of instructions? The characteristics of, what is it, instructions. क्या होते हैं characteristics? पहला तो ये that an instruction should be definitive. इस बात का मतलब ये है दैट एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी डिफाइंड विदाउट एनी एम्बिग्विटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है i इक्वल्स टू
this 1. अब ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है हमारे इसमें, दिस इज एन इनवैलिड ऑपरेटर, ओके, तो ये इनवैलिड हो जाएगा इंस्ट्रक्शन. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप लिखते हैं आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, दिस इज अ वैलिड ऑपरेटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक वैलिड इंस्ट्रक्शन. सो the first characteristic of instruction is definitive, and definitive means that every instruction must be defined without any ambiguity. Okay. Second, finiteness. Okay. Every instruction must be terminated within finite amount of time. ठीक है, वो इन्फिनाइट रन नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आई इक्वल्स टू 1 है और हम वाइल का लूप लगाते हैं, ठीक है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें आपने कोई स्टॉप कंडीशन नहीं लगाई है, राइट. आई इक्वल्स टू 1 किया और आप इसे बस इंक्रीज करते जा रहे हो, राइट, तो एक इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है, ये इन्फिनाइट लूप चला जाएगा, है ना. तो ये बिकॉज इट्स नॉट स्टॉपिंग अप आफ्टर ए फाइनाइट टाइम, राइट, इसलिए ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि हमने बताया नहीं ना कि कहाँ तक जाना है इसको. अगर हमने यहाँ कोई कंडीशन लगाई होती दैट वाइल आई इज लेस देन n, राइट, और आप n ऊपर डिफाइन कर देते, n मान लो आप 10 ले देते, तो ये लूप 1 से स्टार्ट होता और 9 तक जाता, ठीक है. द मोमेंट इट बिकम्स 10 तो ये फॉल्स हो जाता, लूप के बाहर आ जाते, बट आपने कुछ डिफाइन नहीं करा हुआ है ना, इसलिए ये फाइनाइट लूप नहीं है. Next condition is every instruction must accept at least 0 input and provide at most 1 output, ठीक है, तो at least 0 input वो accept करे, right, and it should provide at most 1 output. at least और at most समझना इसमें. For example you have a operator which is plus, and अगर आपको plus करवाना है तो आपको दो ऑपरेंड्स देने पड़ेंगे, राइट, तब जाके आपको एक आउटपुट आएगा, है ना. ओके, सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट इज दैट द इंस्ट्रक्शन शुड बी डेफिनेटिव. सेकेंड इज द इंस्ट्रक्शन शुड बी फाइनाइट, they should be terminated within finite amount of time, and the third is that every instruction must accept at least 0 input and provide at most 1 output. Okay, thank you.